Hello everyone. So today we'll start with the amplifiers. In the last class we completed the different biasing circuits. ठीक है, और वहां पे हमने देखा था जो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग जो है हमारी, that is the most suitable biasing if we want to stabilize the operating point of a transistor. Now today we'll start with amplifiers. So first we should know what is an amplifier. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, it is amplifying something, it is increasing something. ठीक है, सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं वी यूजुअली कम अक्रॉस विद वेरी वीक इनकमिंग सिग्नल्स. ठीक है, तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच गिव्स एन इनलार्ज्ड रिप्रोडक्शन ऑफ द इनकमिंग सिग्नल्स. हमारा अगर कोई वीक इनकमिंग सिग्नल है तो एम्पलीफायर की हेल्प से जो है हम उसको इनलार्ज कर सकते हैं. जैसे अगर हम स्टीरियो सुन रहे हैं, वी कैन नॉट हियर अ स्टीरियो सिस्टम, वी इंक्रीज द वॉल्यूम. ठीक है, जैसे अगर हम टीवी देख रहे हैं, व्हेन द पिक्चर ऑन आवर टेलीविजन इज टू डार्क, what we do, we increase the brightness. ठीक है, so in both the cases what we are doing, we are taking a relatively weak signal and making it stronger. so ये जो हमारा process होता है of increasing the input signal, this is called amplification. और जो ये काम करता है, the circuits that are used to perform this function, or you can say the circuit which is used for amplification, that is called the amplifier. So we can say that amplifier जो है, it is a device which produces a larger electrical output of similar characteristics than that of the input parameters. ठीक है, वो जो है हमारा करंट भी इंक्रीज कर सकता है, वोल्टेज भी इंक्रीज कर सकता है. अगर वो करंट इंक्रीज कर रहा है देन उस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं करंट एम्पलीफायर्स. अगर वो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो हम बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर्स. अगर पावर इंक्रीज कर रहा है देन वी कैन से दैट द पावर एम्पलीफायर्स. ठीक है, तो ये जो हमारे, so this is the process of enlargement of input signal. The amplification is the process of enlargement of input signal. ठीक है, और जो सर्किट होते हैं जो हमारा परफॉर्म कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन, उन सर्किट को हम बोलते हैं एम्पलीफायर्स. ठीक है, दे आर यूजुअली कॉल्ड करंट एम्पलीफायर्स, voltage amplifiers or power amplifiers according as the current, voltage और power of the input signal is amplified. अगर हमारा current gain बढ़ रहा है that means current is amplified, voltage gain बढ़ रहा है then voltage is amplified, power gain बढ़ रहा है then power is amplified. ठीक है, so next we'll see that जो हमारे amplifiers होते हैं they are also classified on the basis of limits of frequency operations. हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम उन्हें क्लासिफाई करने चले तो बहुत सारे हमारे पास एम्पलीफायर्स होते हैं. वी कैन क्लासिफाई एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ बायसिंग कंडीशंस, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द लोड रेजिस्टेंस, we can classify on the basis of frequency response, on the basis of number of stages, on the basis of method of coupling between the stages. So there are various ways in which we can classify the amplifiers. तो यहाँ पे ये एक तरीका दे रखा है that we can classify the amplifiers on the basis of limits of frequency operations. ठीक है, इसके basis पे what are the different types of amplifiers? We have the direct coupled amplifiers, audio frequency amplifiers, video frequency amplifiers and radio frequency amplifiers. Now ये amplifiers जो है इनका काम क्या होता है? and they are classified on the basis of the frequency operations. तो जो हमारे direct coupled amplifiers होते हैं they are basically used to amplify the input signals of low frequencies. अगर हमारे पास कोई ऐसे signals है which are having low frequencies, so that can be amplified with the help of direct coupled amplifiers. ठीक है, next we have audio frequency amplifiers. नाम से पता चल रहा है audio. So these are the amplifiers which are used to amplify the signals of frequencies in the audible range 20 hertz to 20 kilohertz. Then we have video frequency amplifiers. They are used to amplify the television signal, that is signals of a few megahertz.
Then we have a radio frequency amplifiers. They are used to amplify signals from 20 kilohertz to several megahertz. ठीक है, so we can classify the amplifiers on the basis of limits of frequency operations. कितने में हमने classify किया? We have classified into 4: the direct coupled, audio frequency, video frequency and radio frequency amplifiers. Now एक चीज यहाँ पर और introduce करी है, bandwidth. Now what is bandwidth? The range of frequencies with which an amplifier deals is called the bandwidth. ठीक है, और यहाँ पर देखो ऊपर मैंने एक और definition लिखी है bandwidth की. It represents the amount or the band of frequencies that the amplifier is most effective in amplifying. किस पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हमारा एम्पलीफायर जो है एम्पलीफाई कर सकता है, उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ. ठीक है, आगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक एम्पलीफायर ऐसा भी पढ़ेंगे जिसमें हम बैंडविड्थ को इन डिटेल समझेंगे. ठीक है, तो अभी जो हमने देखा इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस what you should know what is an amplifier, what is the function of an amplifier, what is amplification. ठीक है, and you should know the definition of bandwidth. अब जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन है एम्पलीफायर का, that is on the basis of Q point, which is the operating point, जो अभी तक हम पढ़ते आए थे थर्ड यूनिट में. ठीक है, तो अब हम एम्पलीफायर्स जो है उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग पॉइंट. तो हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एम्पलीफायर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग कंडीशंस? वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 4: द क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी, class AB and class C amplifier. So these are the different classification of amplifiers on the basis of their operating conditions. ठीक है, दूसरे भी हमारे और टाइप के एम्पलीफायर्स भी होते हैं which are classified on the basis of type of coupling. जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग है, इसको हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एम्पलीफायर. We can also have LC coupled amplifier, we can have transformer coupled amplifiers. So we have large classification of amplifiers. तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है. ठीक है, तो पहले हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग कंडीशंस. ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वील सी कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. ठीक है, ये हमारे कौन से एम्पलीफायर्स होते हैं? ये वो एम्पलीफायर्स होते हैं विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, कि हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं. अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं तो उस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. और अगर हम एमीटर जो है उसको कॉमन ले रहे हैं देन दैट एम्पलीफायर इज नोन एज द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एम्पलीफायर जो है हम ये भी देखेंगे. ठीक है, सो वील सी ईच ऑफ दीज एम्पलीफायर्स वन बाय वन. फर्स्ट वील सी the different types, or the you can say the classification of amplifier on the basis of operating point or Q point or silent point or quiescent point. ठीक है, तो we'll now see the different classifications one by one. पहली चीज हम इसमें सिर्फ इतना देखेंगे जितना तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा ये बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑलरेडी बहुत लेंथी बुक है. यूनिट 1 भी बहुत लेंथी था, यूनिट 2 जो है वो तो बहुत ही ज्यादा लेंथी था जिसको कंप्लीट करने में हमें काफी टाइम लगा. नाउ वी आर ऑन द लास्ट यूनिट विच इज यूनिट 3, तो हम उतना ही करेंगे जितना सिलेबस में है, हम उससे ज्यादा नहीं करेंगे. ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है. इसमें बस जो है हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे हर एक एम्पलीफायर का, कि इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है, इसका यहाँ होता है. तो अगर हमारा इनपुट वेव फॉर्म ये है तो व्हाट विल बी द आउटपुट वेव फॉर्म. एक हम ये देखेंगे कि कितना पार्ट जो है हमारा वो क्लिप ऑफ हो जाता है या सारा का सारा पार्ट एम्पलीफाई होता है, ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वील सी द क्लास ए एम्पलीफायर. क्लास ए एम्पलीफायर्स जो होते हैं उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है दैट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन.
The operating point or the Q point for class A amplifier correspond to the midpoint of the DC load line. ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं when we were talking about the operating points, when we were talking about the different biasing conditions of a transistor. Now such type of amplifiers, इस टाइप के जो एम्पलीफायर्स होते हैं क्लास ए एम्पलीफायर्स, जहां हम ऑपरेटिंग पॉइंट को डीसी लोड लाइन के मिड पॉइंट पे रखते हैं, वो एम्पलीफायर्स हमें वोल्टेज एम्पलीफिकेशन देते हैं विदाउट एनी डिस्टॉर्शन. विदाउट एनी डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? हमारा जो इनपुट सिग्नल होता है हमें कंप्लीट जो है आउटपुट मिलता है विदाउट एनी क्लिपिंग. कुछ भी क्लिप्ड ऑफ नहीं होता. वी गेट द इंटायर आउटपुट. ठीक है, ये अभी मैं दिखाऊंगी फिगर में. नाउ दे आर यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ रेडियो एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. यहाँ पर एक तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व तुम्हें पता होना चाहिए जो मैं अभी दिखाऊंगी. नेक्स्ट जो है इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं और इसका वोल्टेज गेन क्या, किसका वोल्टेज गेन ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका पावर गेन ज्यादा है, किसका पावर गेन कम है. ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, हम कोई भी रिलेशन डिराइव नहीं करेंगे, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जो है इसकी बेसिक फिजिक्स जो है उसको समझेंगे. ठीक है, बस इतना ही तुम्हें करना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. तो हमारा ये जो क्लास ए एम्पलीफायर होता है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है एट द मिड पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन. ठीक है, ये एम्पलीफायर्स जो होते हैं दे बेसिकली एम्पलीफाई द वोल्टेजेस विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, द मेन थिंग, and they are used for the amplification of radio and audio frequency signals. Now the amplification of an AC input signal by a class A amplifier is shown in the figure 8.6 of article 8.3. ये हमने पहले जो है देखा था. ठीक है, वही डायग्राम जो है डिट्टो तुम्हें यहाँ पर बनाना है. मैं अभी वो डायग्राम शो करूंगी. नो इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे, जो हमारा ये एम्पलीफायर है इट प्रोवाइड्स कलेक्टर करंट ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल एंड द एम्पलीफायर इज सेड टू बी वर्किंग इन द एक्टिव रीजन. नाउ ये है हमारा क्लास ए एम्पलीफायर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस पे है कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, वाई एक्सिस पे है हमारा कलेक्टर करंट. इफ आई एम टेकिंग एमीटर एज द कॉमन टर्मिनल इन द ट्रांजिस्टर. ठीक है, और हमारा ये है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डीसी लोड लाइन, दिस इज द कट ऑफ पॉइंट एट वीसीसी, दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट एट वीसीसी अपॉन आरएल. ये सब हम देख चुके हैं. क्लास ए एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है दिस इज एट द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन. ठीक है, जो हम पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो अगर जो मैं इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रही हूँ, अगर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है तो इनपुट जो है वो मैं अप्लाई करूंगी टू दी बेस टर्मिनल. ठीक है, और जो हमारा बेस करंट है वो IB है. जब मैंने कोई इनपुट AC सिग्नल अप्लाई नहीं किया तब उस केस में सिर्फ DC कंडीशंस जो है दैट आर प्रिवेलिंग इन द सर्किट, तो हमारा जो बेस करंट होगा दैट विल जस्ट बी IB, दैट विल बी अ DC वैल्यू. नाउ व्हेन आई अप्लाई द AC इनपुट सिग्नल जिसको मुझे एम्पलीफाई करना है टू द बेस, देन व्हाट हैपेंस इफ दिस इज देन व्हाट हैपेंस अगर AC इनपुट सिग्नल जो है मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, देन अब जो हमारा बेस करंट है वो DC नहीं रहेगा, वो AC हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशंस इन बेस करंट. तो इसके रिस्पेक्ट में व्हाट विल बी आर आउटपुट वोल्टेज, द कलेक्टर वोल्टेज, एंड आर आउटपुट करंट दैट इज द कलेक्टर करंट. हमारा आउटपुट करंट जो कलेक्टर करंट है दैट इज गिवन बाय दिस, और जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है द कलेक्टर वोल्टेज और द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज दैट इज गिवन बाय दिस. तो यहाँ पर तुम देखोगे तो हमारा होल ऑफ द इनपुट सिग्नल जो है पूरा का पूरा जो है हमारा वो हमें मिल रहा है इन दी आउटपुट. कुछ भी वेव फॉर्म, कुछ भी पार्ट जो है इनपुट वेव फॉर्म का दैट इज नॉट क्लिप्ड ऑफ. ठीक है, हमें कंप्लीट वेव फॉर्म जो है वो मिल रही है, कोई भी पोर्शन जो है वो क्लिप्ड ऑफ नहीं है. ठीक है, सो वी कैन से दैट वी आर receiving the output without any distortion when we are using the operating point at the center of the DC load line, and this we do in case of a class A amplifier. तो जब एग्जाम में क्लास A एम्पलीफायर आएगा तो ये डायग्राम जो है ये बनाना जरूरी है. ठीक है,
फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन इजीली शो दैट कि हमारा जो कलेक्टर करंट है, दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट करंट है, दैट इज that we are receiving during the complete cycle of input signal. Nothing is clipped off. We are getting the output without any distortion. ठीक है? Now there exists a collector current even under no signal condition. जब हमने कोई इनपुट AC सिग्नल अप्लाई नहीं किया, उस केस में भी हमारा कलेक्टर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, विच इज कांस्टेंट IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. अभी सिर्फ DC कंडीशन है सर्किट में, हमने कोई इनपुट AC सिग्नल अप्लाई नहीं किया, उस केस में भी हमारा कलेक्टर करंट जो है वो फ्लो करता है. ठीक है, एंड दिस इज इन द range of, or you can say that it is of the order of around milliamperes. ठीक है. Now when we apply the input AC signal, तो हमें कलेक्टर आउटपुट कैसा मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है इस तरीके का. ठीक है. So now in the presence of AC input signal, or you can say when the signal is applied to the input, collector current जो है it varies between IC maximum and IC minimum. This is the maximum value and this is the minimum value of collector current. ठीक है. और जो एम्पलीफिकेशन है गिवन बाय दीज एम्पलीफायर्स इज मैक्सिमम एंड देयर इज नो डिस्टॉर्शन. जो हमें एम्पलीफिकेशन मिली विद द हेल्प ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर वो मैक्सिमम है एंड देयर इज नो डिस्टॉर्शन. करंट जो है हमारा इट इज फ्लोइंग फॉर द कंप्लीट इनपुट साइकिल, नथिंग इज क्लिप्ड ऑफ. ठीक है. सो वी कैन से दैट नो डिस्टॉर्शन इज present. वही यहाँ पे लिखा है there is no distortion. and why we are saying that amplification is maximum, because जो हमारा current है that is flowing for the complete input cycle. लेकिन जो क्लास ए एम्पलीफायर्स होते हैं इनका जो आउटपुट पावर है वो लो होता है और जो एफिशिएंसी है वो भी लो होती है. वर्स्ट कंडीशन इन द क्लास ए एम्पलीफायर इज मेट इन व्हेन द इनपुट सिग्नल इज 0. At this stage transistor dissipate maximum power, as it may be seen from the figure that IC and VCE have large values under no signal condition. जब कोई इनपुट सिग्नल हमारा अप्लाइड नहीं होता उस केस में भी जो है वी हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड द लार्ज वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज. तो यहाँ पर तुम्हें कितना करना है जब एग्जाम में आएगा, दैट यू हैव टू क्लासिफाई द ट्रांजिस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग पॉइंट. तो वहां पे क्लास ए एम्पलीफायर में क्या लिखोगे, एक तो ये चीज मेंशन करनी जरूरी है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है दिस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन. फिर वो कर्व बनाओगे जो मैंने दिखाया था, उस कर्व की हेल्प से तुम ये चीज शो करोगे कि इस केस में जो हमारे पास आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज आता है वो डिस्टॉर्शन फ्री होता है. देयर इज नो डिस्टॉर्शन, वी गेट द कंप्लीट सिग्नल फॉर द कंप्लीट इनपुट साइकिल. कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता. Next, what you have to write that they can be used for the amplification of radio and audio frequency signals. They give voltage amplification without any distortion. Then you have to write this thing also that they have low output power and low efficiency. ठीक है. और एक ये चीज भी लिख देना कि ट्रांजिस्टर जो है it dissipates maximum power when no input signal is applied. When the input signal is 0, in that case for class A amplifiers transistor जो है it dissipates maximum power because of the large values of IC and DCE under no signal condition. इन सबकी प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जिससे तुम इजीली ये चीज देख सकते हो कि why the efficiency is low, why the output power is low. बट तुम लोगों को वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट कंपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स. यू जस्ट हैव टू कंपेयर क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग पॉइंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी. Now next we come to class B amplifier. जो हमारा class B amplifier होता है इसका जो operating point होता है that is the cut off point on the DC load line. Cut off point क्या होता है मैंने already बताया था अभी. अगर मेरा ये DC load line है then this point is representing the cut off point. तो class B amplifier में हम जो cut off point जो है DC load line का that is the operating
पॉइंट। देखो बुक में जो है ये डायग्राम गलत बना रखा है, मैंने यहाँ पर जो बनाया है दैट इज द करेक्ट वन। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है क्लास बी एम्पलीफायर में, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशंस इन बेस करंट। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में बनाना है। नाउ व्हाट विल बी द वेरिएशंस इन द VCE एंड वेरिएशंस इन IC। दिस इज नॉट VCE, दिस इज द वेरिएशंस इन कलेक्टर करंट। जब हमने AC इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया, देन व्हाट हैपेंस टू द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। AC सिग्नल अप्लाई करने से बेस करंट जो है, जो हमारा इनपुट करंट है, उसमें वेरिएशंस होंगी। उसमें वेरिएशंस होने की वजह से देयर विल बी वेरिएशंस इन कलेक्टर करंट एंड द वेरिएशंस इन कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो करंट है हमारा थ्रू द कलेक्टर सर्किट, दैट मीन्स द कलेक्टर करंट जो है इट विल फ्लो ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। negative half of the input cycle में we are getting no output, that is clipped off. क्यों? Because the operating point is selected at the cutoff point of the DC load line. तो जब हम इसको यहाँ पर extend करेंगे, देखो यहाँ से this is our maximum value of the base current, तो हमें जो है ये आउटपुट जो है वो मिलेगा। ठीक है, और जो हम यहाँ पर देखो हमारी डीसी लोड लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन दैट इज क्लिप्ड ऑफ, तो इसको हम डॉटेड से शो करेंगे। डॉटेड से शो करने का मतलब है इट इज क्लिप्ड ऑफ। तो किस तरीके का हमारे पास वेरिएशंस आई VCE में, हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप्ड ऑफ हो चुका है कंप्लीटली, फिर हमें अनदर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप ऑफ हो चुका है। सिमिलरली इन दी कलेक्टर करंट। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी ये वाली लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग डीसी लोड लाइन से हमारी ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, तो हमारा दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कलेक्टर करंट। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वी आर गेटिंग द आउटपुट, नेगेटिव हाफ साइकिल पे वी आर नॉट गेटिंग। फॉर द पॉजिटिव इनपुट साइकिल वी आर अगेन गेटिंग द आउटपुट। सो व्हाट इज द वेरिएशन इन कलेक्टर करंट? इट इज लाइक दिस, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे है, नेगेटिव पे नहीं है, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट द आउटपुट कलेक्टर करंट एंड द आउटपुट voltage, that is the collector to emitter voltage for a class B amplifier. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, for class B amplifier the operating point is the cutoff point on the DC load line. ठीक है, so what we are getting here, it can be easily seen from this characteristic curve that current through the collector circuit, that means the output current will flow only for the positive half of the input cycle. ये जो हम, ठीक है, एक ये चीज है जो हमें करना है कि हम इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रख रहे हैं और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर में हमें फुल आउटपुट मिल रहा है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। क्लास बी एम्पलीफायर में हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव के लिए नहीं मिल रहा। So we can say that the collector current will flow only for the positive half of the input cycle. Next, efficiency. क्लास ए एम्पलीफायर में हमने लिखा था कि उसकी एफिशिएंसी लो होती है। जो क्लास बी एम्पलीफायर्स हैं, देयर एफिशिएंसी इज अबाउट 50% to 60%। क्लास बी एम्पलीफायर्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड टू एम्पलीफाई दोज ऑडियो सिग्नल्स वेयर डिस्टॉर्शन कैन बी टॉलरेटेड। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो हमारा डिस्टॉर्टेड आउटपुट है, हमें जैसा इनपुट था वैसा का वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा। वी आर गेटिंग द आउटपुट ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। तो इन एम्पलीफायर्स को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम डिस्टॉर्शन जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, जहां पे हमें डिस्टॉर्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दे आर बेसिकली यूज्ड टू एम्पलीफाई दोज ऑडियो सिग्नल्स वेयर डिस्टॉर्शन कैन बी टॉलरेटेड। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ एम्पलीफायर, दैट इज द क्लास AB एम्पलीफायर। जो हमारा क्लास AB एम्पलीफायर होता है ना, अब हमें क्या पता लगाना है, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है। So in this class of amplifiers, operating point is so selected that the current through the transistor flows for more than one half cycle but not through the complete cycle। मतलब हमें किस तरीके का आउटपुट मिलेगा,
इनपुट साइकिल जो है वो तो हमें पूरा मिलेगा, और जो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इनपुट का वो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कंप्लीट आउटपुट मिलेगा, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इनपुट का उसके करस्पॉन्डिंग हमें कंप्लीट आउटपुट नहीं मिलेगा। इतना आउटपुट हमें मिलेगा, जो इतना पोर्शन है दैट विल बी क्लिप्ड ऑफ, ये पोर्शन क्लिप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरीके का होता है कि जो हमारा करंट है दैट विल फ्लो फॉर मोर देन वन हाफ साइकिल बट नॉट थ्रू द कंप्लीट साइकिल। ये हमारा मोर देन वन है ना, दिस थिंग, दिस एंड देन दिस। ठीक है, दिस इज one, then this is the another one which is not complete, so we are getting more than one half cycle but not the complete cycle। तो इस केस में जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो हमारा एक्टिव रीजन में होता है, बट इट इज नियर द कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट के पास होता है। ऑफ सैचुरेशन रीजन नहीं, यहाँ पर आएगा कट ऑफ रीजन। इसको करेक्ट करो। इस जो हमारा ये यूनिट है इसमें काफी चीजें हैं जो गलत दे रखी हैं, मैं जो साथ के साथ बता रही हूँ उन चीजों को ठीक करते जाना। कट ऑफ पॉइंट जो है वो हमारा कट ऑफ रीजन में होता है, सैचुरेशन रीजन में वी हैव द सैचुरेशन पॉइंट। तो इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होता है, डीसी लोड लाइन पे ही होता है। ठीक है, एंड इट इज नियर टू द कट ऑफ पॉइंट ऑफ द कट ऑफ रीजन। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं इन दी फिगर 8.4 जो हमने पहले किया था। ठीक है, वो मैं यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ। नाउ दिस इज 8.4, नो सॉरी नॉट 8.4, दिस इज इन 8.5। ठीक है, जहां पर हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इट इज नियर द कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट करो, दिस इज नॉट 8.4, दिस इज 8.5। so figure 8.5 जो है it shows the variation of current for such an amplifier where operating point जो है it is near the cut off point। ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा होता है नियर द कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट हमारा VCC है, ये VCC के पास है यहाँ पर। तो इस केस में if this is the variation in base current, if this is the variation in base current, then what will be the variations in output current and output voltage? ये हमारा आउटपुट करंट है द कलेक्टर करंट, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है द कलेक्टर वोल्टेज और द कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। यहाँ पर देखो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इनपुट की उसके रिस्पेक्ट में वी आर गेटिंग द कंप्लीट आउटपुट। इनपुट जो है हमारा वो हमारा क्लिप ऑफ हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट आउटपुट फॉर द नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट जो है उसको सेट करते हैं नियर द कट ऑफ पॉइंट, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट होता है वो हमें मिलता है फॉर मोर देन वन हाफ साइकिल बट नॉट फॉर द कंप्लीट साइकिल। For the positive half of the input cycle, we are getting the output both in the collector current and in the collector to emitter voltage. But for the negative half, we are not getting the complete waveform. Some of the part is clipped off. We are getting only the this much part for the negative half of the input cycle. Same for the collector to emitter voltage, we are getting this part, this much portion of the waveform जो है it is clipped off for the negative half of the input cycle. I hope ये सबको clear है. So in this class of amplifier, the class AB amplifier, current flows for more than one half cycle but not through the complete cycle, and here operating point जो है it is near the cutoff point of the cutoff region. और ये जो हमारा class AB amplifier होता है it is having high efficiency and it is producing low distortion with medium output power. The efficiency of such amplifiers is between that of class A and class B amplifier. इसकी efficiency जो होती है वो in between होती है of that of class A and class B amplifiers. मतलब class A amplifiers जो है उनकी efficiency सबसे कम होती है, क्लास ए बी की उससे ज्यादा होती है, क्लास बी एम्पलीफायर की इन तीनों में से सबसे ज्यादा होती है। और जो हमारा डिस्टॉर्शन है क्लास ए
बी और ए बी में सबसे ज्यादा बी में होता है। क्लास ए में हमें कंप्लीट वेव फॉर्म मिलती है, क्लास ए बी में हमें मोर देन 1/2 साइकिल के लिए वेव फॉर्म मिलती है, और क्लास बी में हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल के लिए वेव फॉर्म मिलती है। सो इट प्रोड्यूसेस लो डिस्टॉर्शन बट हाई एफिशिएंसी, और जो एफिशिएंसी होती है दैट इज इन बिटवीन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर्स। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? दे आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर स्टेज ऑफ रेडियो रिसीवर्स। इतना ही इन सब के बारे में करना इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वील कम टू द लास्ट amplifier that is classified on the basis of their operating point, that is the class C amplifier. In class C amplifier what is there? class C amplifier में जो हमारा operating point होता है that is below the cutoff point. It is near the cutoff point but it is below the cutoff point. ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वो गलत लिखा है। ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे नहीं लिखना, एंड आई वुड प्रेफर ये वाला डायग्राम भी मत बनाना। ठीक है, मैं इसके लिए एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वहां पर इसको देखना। नाउ दिस वन, इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देती हूँ। इस तरीके का हमारा वेव फॉर्म होता है, पहले इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, ये मेरा इनपुट सिग्नल है अगर यहाँ पर। ठीक है, इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है? जो ऑपरेटिंग पॉइंट है फॉर क्लास सी एम्पलीफायर दैट इज प्लेस्ड समवे बिलो द कट ऑफ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन। ये हमारी डीसी लोड लाइन है, यहाँ पे हमारा कट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ पॉइंट के भी नीचे होता है। So here operating point is placed below the cutoff point in the DC load line. So only a fraction of the input waveform is available at the output. सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हमें मिलता है आउटपुट में, मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा क्लिप्ड ऑफ हो जाता है। फॉर क्लास सी एम्पलीफायर जो कलेक्टर करंट होता है, it flows for less than 1/2 of the input AC cycle and remains cut off for more than 1/2 of the cycle. ठीक है, यहाँ पर क्लास सी एम्पलीफायर में जो कलेक्टर करंट होता है इट फ्लोज ओनली फॉर लेस देन 1/2 ऑफ द इनपुट एसी साइकिल, मतलब पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग भी हमें वेवफॉर्म नहीं मिलती, उसमें भी कुछ पोर्शन जो है वो हमारा क्लिप ऑफ हो जाता है। देखो अब इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर ये मेरा इनपुट सिग्नल है, ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मेरी डीसी लोड लाइन जो है इसका कट ऑफ पॉइंट है, तो हम यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसकी मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी। तो हमें कितना पोर्शन मिल रहा है? सिर्फ इतना इनपुट सिग्नल जो है हमें आउटपुट दे रहा है। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बिलो द कट ऑफ पॉइंट हमारा पोर्शन है, दैट पोर्शन विल बी क्लिप्ड ऑफ। तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है फॉर लेस देन 1/2 ऑफ द इनपुट एसी साइकिल। कितना पोर्शन क्लिप ऑफ या कट ऑफ हो जाता है? मोर देन 1/2 ऑफ द साइकिल। पूरा नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप्ड ऑफ है और पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी कुछ पोर्शन क्लिप्ड ऑफ है। सो वी आर गेटिंग द आउटपुट फॉर लेस देन 1/2 ऑफ द इनपुट एसी साइकिल। तो एग्जाम में जब क्लास सी एम्पलीफायर आएगा तो वहां पर जब तुम ऑपरेटिंग पॉइंट दिखाओगे तो जिस तरीके से इस बुक में शो किया है वो इतना एप्ट नहीं है। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इट शुड बी ऑन द डीसी लोड लाइन। ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा लोड लाइन पे होना चाहिए। उन्होंने ऑपरेटिंग पॉइंट जो है कट ऑफ पॉइंट से थोड़ा दूर तो बनाया है, बट उन्होंने एक्स एक्सिस पे बना दिया है, और ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा डीसी लोड लाइन पे होना चाहिए। So I would prefer एग्जाम में जब आएगा then draw this kind of output characteristic curve for the class C amplifier. Now I am again sharing the previous screen.
दिस वन। ठीक है, तो एग्जाम में उस तरीके से बनाना। अब यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा है। क्लास सी एम्पलीफायर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए क्या लिखोगे कि इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है दैट इज बिलो द कट ऑफ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन। ठीक है, एंड हियर द कलेक्टर करंट जो है इट फ्लोज फॉर लेस देन 1/2 ऑफ द इनपुट एसी साइकिल एंड रिमेन्स कट ऑफ फॉर मोर देन 1/2 ऑफ द साइकिल। मतलब यहाँ पर हमें किस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इतना पोर्शन जो है हमारा डॉटेड है, लेट्स से हमें सिर्फ इतना पोर्शन मिलता है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है दैट इज क्लिप्ड ऑफ। सो वी आर गेटिंग ओनली फॉर लेस देन 1/2 ऑफ द इनपुट एसी साइकिल। जो हमारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, मोर देन 1/2 ऑफ द साइकिल जो है दैट इज कट ऑफ और क्लिप्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर इसको देख सकते हो, वेव फॉर्म इन्होंने ठीक बनाई है, इतना पोर्शन हमें मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज क्लिप्ड ऑफ। सिमिलरली यहाँ पर हमें इतना पोर्शन मिल रहा है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज क्लिप्ड ऑफ। इन्होंने देखो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे बना दिया, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है इट शुड बी ऑन द डीसी लोड लाइन। ठीक है, so here the average collector current is very small and as a result power losses are small। efficiency जो होती है क्लास सी एम्पलीफायर की ये सबसे ज्यादा होती है, it is of the order of 75%। तो सबसे कम efficiency किसकी होती है, क्लास ए एम्पलीफायर की। then we have class AB amplifier whose efficiency is between that of A and B। then we have class B amplifier, then we have class C amplifier। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है क्लास सी एम्पलीफायर की, सबसे कम एफिशिएंसी होती है क्लास सी एम्पलीफायर की। सॉरी, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है क्लास सी एम्पलीफायर की और सबसे कम एफिशिएंसी होती है क्लास ए एम्पलीफायर की। ठीक है, और डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा किसमें होती है, सबसे कम डिस्टॉर्शन है या नो डिस्टॉर्शन है क्लास ए एम्पलीफायर में। ठीक है, उसके बाद क्लास ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, उसमें हमें पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है आउटपुट और कुछ नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमें आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद डिस्टॉर्शन जो है किसमें ज्यादा होती है, क्लास बी में। उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है आउटपुट, नेगेटिव के लिए नहीं मिलता। सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किसमें होती है, क्लास सी एम्पलीफायर में, जिसमें हमें पूरा इनपुट पूरा जो हमारा इनपुट साइकिल है उसका पॉजिटिव हाफ भी पूरा नहीं मिलता। we are getting the output for less than 1/2 of the input AC cycle। हमें पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट नहीं मिलता, उसमें भी सम ऑफ द पार्ट इज क्लिप्ड ऑफ और कट ऑफ। ठीक है, और क्लास सी एम्पलीफायर जो है इनको हम कहाँ यूज करते हैं, दे आर यूज्ड इन रेजोनेंट और ट्यून्ड सर्किट्स, एग्जांपल इन रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमीटर्स। These amplifiers are used only in the radio frequency stages of transmission। तो यहाँ पर हमने देखा the different types of amplifiers or the classification of amplifiers on the basis of their operating point or on the basis of operating point of the transistor। class A amplifier में operating point जो है it is at the midpoint of the DC load line। class B amplifier में जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है दैट इज एट द कट ऑफ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन। क्लास ए बी एम्पलीफायर में जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है इट इज नियर द कट ऑफ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन। ठीक है, और जो क्लास सी एम्पलीफायर है उसमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इट इज बिलो द कट ऑफ पॉइंट ऑन द डीसी लोड लाइन। तो एग्जाम में जब आएगा चारों का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स बताने हैं सबके कहाँ कहाँ पर होते हैं, जो हमें आउटपुट मिलेगा कितना पोर्शन मिलता है, कितना क्लिप्ड ऑफ हो जाता है वो भी बताना है। फिर इनके डिस्टॉर्शंस बतानी है, किसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन है किसमें कम डिस्टॉर्शन है, और उसके बाद एफिशिएंसी भी बतानी है, किस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे कम है, किसकी मॉडरेट है और किसकी सबसे ज्यादा है। तो एफिशिएंसी हमने देखा सबसे कम ए की है, उसके बाद ए बी की है, उसके बाद बी की है, फिर सबसे ज्यादा सी की है। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी किस तरीके से बढ़ रही है, सबसे कम एफिशिएंसी ए की है, देन आवर एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग, उसके बाद
किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? ए बी की। आफ्टर दिस किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है? बी की। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? सी की। ठीक है, और डिस्टॉर्शन जो है सबसे कम किस में है? ए में। ठीक है, और यू कैन से नो डिस्टॉर्शन, हमें पूरा आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद डिस्टॉर्शन जो है वो किस में बढ़, धीरे धीरे डिस्टॉर्शन कैसे बढ़ रहा है? ए में नो डिस्टॉर्शन, उसके बाद है बी, सॉरी उसके बाद है ए बी, सेम सीक्वेंस है डिस्टॉर्शन का भी। ए बी में हमें जो आउटपुट मिल रहा है, वी आर गेटिंग द आउटपुट फॉर मोर देन 1/2 साइकिल, नॉट फॉर द कंप्लीट साइकिल, वी आर गेटिंग फॉर मोर देन 1/2 साइकिल। उसके बाद किसका है? बी का, जिसमें डिस्टॉर्शन जो है हमारा वो बढ़ रहा है। कितना हो गया? अब जो हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट एसी साइकिल। उसके बाद सी का है, हमें पूरा इनपुट एसी साइकिल जो है उसके करस्पॉन्डिंग भी आउटपुट नहीं मिलता, लेस देन 1/2 के लिए मिलता है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है और इसी तरीके से हमारा जो डिस्टॉर्शन है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टॉर्शन की जो इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स है वो भी बनानी जरूरी है। ये हमारा क्लास ए एम्पलीफायर के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये हमारा क्लास बी के करस्पॉन्डिंग है, ये क्लास ए बी के करस्पॉन्डिंग है, और ये क्लास सी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है हाउ वी कैन क्लासिफाई द एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड देन वी विल सी द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ये जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड है? इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेस जो है दैट इज द कॉमन टर्मिनल बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो हमारा एमीटर होगा दैट विल बी द कॉमन एमीटर बिटवीन द इनपुट एंड द output. So this we'll see in the next class.